Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to look at the 15 MCQ practice set. Okay, so first of all, we are going to look at the questions. Then उसके बाद 5 से 10 सेकेंड के बाद I am going to reveal the answer. Towards the end of the lecture, you need to comment down that what was your score. Okay. So now let us begin the lecture now, or the quiz. So here comes the very first question. Now, what is the arithmetic mean? It is the middle value of a data set. B, the sum of all observations is divided by the number. C, the value that occurs most frequently, or D, none of these. Try solving it out. So the correct answer over here is B. How? Mean, as we have discussed, mean is equal to sum of all the observations, sum of observation divided by number of observations. Right. Now let us look at the second question. If the sum of 10 observations is 150, then the mean is. Try solving it out. So the right answer over here is B. Now, if the sum is 10 and number of observations, if the sum of 10 observations, so number over here is 10 and sum is 150, what is our mean? So mean is sum divided by number. So sum is 150 and number is 10, so our mean is 15. So answer B is right. Now moving to the next question. In a frequency distribution, the formula for mean is. Now formula of all the lectures, sabhi questions ka formula in statistic is very important. Right. Now try solving it out first. So the formula for mean is sum of fx by n. This is where in the discrete or in the group series, and in the individual series it will be sum of x only by n. Right. So our correct option is option number B, sum of fx by n. Now moving to the next question, we have if each observation of a series is increased by 5, then the mean is, मतलब हर एक observation एक series है, अगर एक series में हम लोग 5 इंक्रीज करेंगे नंबर, तो क्या होगा पूरा मीन का आंसर? So let's solve this. Now if each observation of a series is increased by 5, so number सोचो 10, 20, 30, 40, 50, ये मान लो एक सीरीज है, ठीक है. सो इसका मीन क्या होगा? 150 150 divided by 5
30 मीन है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 इंक्रीज कर देंगे सब में, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55, राइट। 15 25 so 40 80 and 55, 175 divided by 5, so what will be our answer, 5 3s are 15, 5 5s are 25, so 35. we can see directly क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 5, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, देयर विल बी एन इंक्रीमेंट। अगर सीरीज में 5 ऐड करेंगे तो मीन ऑटोमेटिकली 5 से इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, एडिंग अ कांस्टेंट इंक्रीज द मीन बाय द सेम कांस्टेंट ओनली, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है अर्थमेटिक मीन का, ट्राई सॉल्विंग इट आउट। Now the options are, it is affected by extreme value, ठीक है। अब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि देयर आर नंबर्स, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 100, ठीक है। यहाँ 100 क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। अब हम अगर इसका मीन निकालेंगे तो हमको सब डिवाइड ऐड अप करना पड़ेगा, देन हमको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा आंसर क्या होगा 33.75। तो क्या हो रहा है, ये 100 के वजह से इंक्रीज हो जा रहा है हमारा मीन, राइट। सो इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। यहाँ हमको क्या फाइंड करना, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। सेकेंड इवेल्युएट करते हैं, सेकेंड ऑप्शन, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0। नाउ सपोज डेटा है हमारे पास जैसे 2 4 एंड 6, ठीक है। अब हम लोग इसका मीन निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6 4 10 12 12 बाई 3 सो 4, ठीक है। ये हमारा मीन हो गया, 4 मीन है। अब मीन, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0। अब डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे, डिविएशंस सो क्या है 2 - 4, है ना। देन क्या है 4 - 4, देन 6 - 4, यही है। सो क्या हो जाएगा यहाँ -2 प्लस यहाँ 0 प्लस 2, तो यहाँ नेगेटिव कुछ भी नहीं, 0। सो सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन, अगर मीन से हम लोग डिविएशंस लेंगे तो क्या वो 0 आएगा, यस वो 0 आएगा। सो ये भी प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या है, इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, नहीं अर्थमेटिक मीन हम लोग जैसे देख रहे हैं कैलकुलेशंस चाहिए, दोनों क्वेश्चंस में हम लोग देखे हैं, दोनों सॉल्यूशंस में भी देखे हैं हम लोग कि हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेशंस चाहिए, हम लोग ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग मीन। हाँ जी, हर वैल्यू को इंक्लूड करना ही है, तभी हम लोग मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये भी प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If mean of 20 items is 15, then sum of all items is, क्या होगा हमारा आंसर।
ठीक है। सो सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू मीन इंटू एन। तो मीन ऑफ 20 आइटम्स, आइटम है 20, मीन है 15, क्या है 300 आंसर। ठीक है, दिस वॉज सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सो आंसर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब यहाँ देखो, द कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, देन जियोमेट्रिक, हार्मोनिक एंड मीडियन। So, the combined mean of two group is calculated using weighted arithmetic mean. weighted arithmetic mean का फॉर्मूला क्या है, या फिर weighted arithmetic mean बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं combined mean, दो मीन को लेकर के। सो सम ऑफ x बार 1 प्लस सम ऑफ x बार 2, this is going to be divided by n1 plus n2. So combined mean of two group is calculated using this formula. So हमारा राइट आंसर है weighted arithmetic mean. अब बाकी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन वो क्या है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। इट इज यूज्ड व्हेन, कब कब यूज होगा, जब नंबर्स आर इन रेशियो फॉर्मेट, 1:2, 3:4 वैसा, या फिर कोई परसेंटेज होगा 4%, 5%, या फिर ग्रोथ रेट में ये सब यूज़ हुआ जाता है। ठीक है, सो अगर हम लोग मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, वेट अ सेकेंड, ठीक है, हम लोग अगर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखेंगे तो GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इंटू x3, ये सब है। ठीक है, एंड nth रूट, ये है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। नाउ सपोज अ कंपनी ग्रोज बाय, एग्जाम्पल ले रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन का, सपोज अ कंपनी ग्रोज बाय 10% या फिर 20% या फिर 30%, 3 सालों में इतना ग्रो किया है। ठीक है, 3 years में। अब हम लोग अगर कैलकुलेट करने जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन का, तो कैसे होगा, 1.10 इंटू 1.20 इंटू 1.30, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में तो कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, एंड टू द पावर n हो जाएगा। सो आंसर क्या है, 1.198। ठीक है, और वी कैन से 19.8%। सो इतना ग्रोथ हुआ, इतना टाइम्स रेशियो या फिर परसेंटेज है, तब फिर ज्योमेट्रिक मीन हम लोग लगा देंगे। अब क्या है दूसरा, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अर्थमेटिक मीन का उल्टा हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ये कब कब यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज्ड व्हेन वैल्यूज़ आर रेट्स लाइक स्पीड, जहाँ स्पीड का यूज़ हो या फिर प्राइस पर यूनिट हो, उन सब जगहों में हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे। सपोज करो अ कार ट्रैवल्स 60 किलोमीटर्स। ठीक है, 60 किलोमीटर्स जा रहा है एट 30 किलोमीटर पर आवर। एक ठो कार जा रहा है 60 किलोमीटर्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक ठो कार है 60 किलोमीटर वो भी ट्रैवल कर रहा है, बट वो किस स्पीड पर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है।
ठीक है, तो यहाँ क्या है, स्पीड डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। सो तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सो कैसे होगा, 2/1/30 प्लस 1/60। सो हमारा आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो स्पीड वगैरह के टाइम पे ये हार्मोनिक मीन हम लोग निकालेंगे। और मीडियन क्या हो जाता है, मीडियन एक मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज़ होता है। सपोज 10, 20, 30, 40, 50 ये सीरीज़ है, तो उसका मिडिल वैल्यू को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। हमको आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा इसका। सो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू दिस, ऑप्शन नंबर ए इज वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन स्टेप डिविएशन मेथड मीन इज कैलकुलेटेड। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप डिविएशन। ठीक है, सो स्टेप डिविएशन में मैंने क्या कहा था कि x एक मार्क्स रहेगा, देन फ्रीक्वेंसी रहेगा, डिविएशन रहेगा, है ना। डिविएशन से भी आगे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी से आगे डिविएशन निकालना है हम लोग को, उसके बाद एक कॉमन फैक्टर से डिवीजन करना होगा, है ना। दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये 9th सम, फॉर द डेटा 5, 5, 5 एंड 5 द मीन इज, अब सिर्फ इसका मीन कैलकुलेट करना है। सो मीन क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं है ना, इसमें 5 5 ज़ा 25 है, 25/5 ऑब्जर्वेशंस है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द मीन इज कैलकुलेटेड कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ, क्या चीज़ का मेजर है मीन, सो मीन इज कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। अब डिस्पर्शन क्या है, मीन क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू है, कोई भी सीरीज का सेंटर में जो भी आएगा उसके इर्द गिर्द ही सब नंबर्स फॉल करना चाहिए, वो मीन हो गया सेंटर वैल्यू। ठीक है, डिस्पर्शन कितना दूरी है, नंबर्स कितना वेरी कर रहा है, उसको डिस्पर्शन बोलेंगे। वेरिएंस, रेंज, उन वो सब आ जाता है डिस्पर्शन में। सिक्यूनेस क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि शो करेगा असिमेट्री या फिर टिल्ट ऑफ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, 0.5 0.5 है अगर, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक है यहाँ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिवली सिक्यूर्ड डेटा, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा हो जाएगा ये। एंड अगर इस तरीका से डिस्ट्रीब्यूशंस रहा तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। ठीक है, और कोरिलेशन क्या होता है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, या फिर नो कोरिलेशन हो सकता है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन किया, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट शॉर्ट। नाउ सो इसका राइट आंसर क्या है, मीन इज कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेथड इज नॉट यूज टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन।
ठीक है, सो द ऑप्शंस आर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन, ये हमने तीनों कवर किया हुआ है, सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज़ का हमें आगे कवर करना है, सो कर लेंगे हम लोग वो सब। सो विच ऑफ दीज मेथड इज़ नॉट यूज टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, रैंक कोरिलेशन, यहाँ लिखा ही है कि कोरिलेशन का मेथड है ना, सो इट इज़ नॉट ओवर हियर। सो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ। नाउ लेट अस लुक विच वन इज एन एडवांटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्या एडवांटेज है अर्थमेटिक मीन का। अच्छा एक बात, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सो विच वन इज एन एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज है अर्थमेटिक मीन का। ऑप्शन नंबर बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, हाँ जी इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, वी हैव लुक्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल डेटाज, ऑल वैल्यू ये तो गलत बात है, इट इज़ बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी वैल्यू, कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर एनालिसिस, ये भी गलत है कि मतलब इट कैन बी यूज फॉर फर्दर एनालिसिस, मल्टीप्लिकेशन डिविजन वगैरह सब पॉसिबल अर्थमेटिक मीन है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये एक एडवांटेज हो गया ना हमारे लिए कि ये हमेशा एग्जिस्ट करता है और ये यूज़ करेगा सभी टाइप का डेटा को, कोई भी डेटा को एक्सक्लूड करके आंसर आप नहीं देगा, तो क्या होगा लास्ट में जो भी हमारा आंसर है वो लगभग एक्यूरेट आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। द मीन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड यूजेस ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, नेचुरल नंबर्स क्या 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। सो इसको ऐड अप करेंगे तो 15, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 5, सो 3, ऑप्शन नंबर ए इज आर आंसर, ठीक है। Here is the explanation. Now, question number 14. In a frequency table, the mean can be less than the smallest value. ठीक है, सो यहाँ क्या है ना, फ्रीक्वेंसी जो टेबल है हमारा, द मीन कैन बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो अगर हम लोग मीन निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5, इसी का हम लोग अभी मीन निकाल लेते, 15/5 तो 3 था, तो क्या है, द मीन कैन बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, और हमारा मीन क्या निकला है 3 निकला है, तो क्या मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू से कम है, नहीं ये तो ज़्यादा है, तो क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के इन बिटवीन है, ये है ना, द मीन कैन बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, नेवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। Then the last question of our class is, which of the following is true
अबाउट अर्थमेटिक मीन, कौन सा सही है अबाउट अर्थमेटिक मीन? सो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही बात है रिगार्डिंग अर्थमेटिक मीन? इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एवरी ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अफेक्टेड बाय एवरी ऑब्जर्वेशन. सो ये तो नहीं हुआ. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट रैदर, ये भी ऑप्शन नहीं है. इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, हाँ ये रिजिडली डिफाइन होता है, सही बात है ये तो. मतलब जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तो उसी पर कैलकुलेशंस होगा, हम लोग अजम्पशंस करके कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज हो गया मीडियन, है ना, मीडियन मोड वो हो गया पोजीशंस बताएगा, ये पोजीशंस बताते नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. अगर किसी भी टाइप का questions हो, doubt हो, you can comment that down. I would love to give a reply to that. और questions तो आपने solve कर लिया, अब जो भी आपका score आया है share ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. अगर आप शाय टाइप के हो तो भी जस्ट लाइक द लेक्चर एंड आई विल नो दैट यू आर बी लुकिंग एट माई lectures from time to time. Okay, so this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. Thank you and take care and bye bye.